ਭਾਰਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੈਵਿਕ ਅਭਿਆਸ ਵਰਗ ਸਥਾਨਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪੈਂਚਾਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਪੂਰਨ ਐਗਰੀ ਵੈਂਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਕਮਚੰਦ ਜੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸੰਪੂਰਨ ਐਗਰੀ ਵੈਂਚਰ ਦੇ MD ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਨਾਗਪਾਲ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜੂ ਨਾਰੰਗ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 300 ਤੋਂ 400 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੌਲੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਚਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਐਗਰੀ ਵੈਂਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਜੀਵ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਮਿਕਸ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਬਰਧਨ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਵੇਖੋ। कि वो स्टेज पर आकर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जी गोदारा जी को सम्मानित करें। तो पूरे पंजाब का जितना भी पानी का फ्लो है वो इस तरफ है आता, तो वहाँ जो खेती होती है, पैडी की खेती एक्सटेंसिव हो रही है, उसका सारा का सारा नीचे से सीपेज जो है वो अबोर की तरफ आ रहा है। इसका कोई और उपाय नहीं है। और ये सीपेज भी, क्योंकि वहाँ पे जिप्सम का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील होने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट खारा पानी बन के यहाँ आ रहा है। इसका एक ही उपाय है जो हमने सफल करके दिखाया है सजराना में। यहाँ पे क्यों पहुंचे, क्या मुख्य कारण है? दरअसल पूरे देश में हमारी धरती की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और विशेषकर पंजाब का नाम लेकर पूरे देश में कुछ ऐसे डरावनी स्थिति बनती जा रही है। तो बहन जी ने कहा कि भाई फाजिलका आना है आपको, और हमारा विषय रखते हैं कि धरती को, मृदा सुपोषण को सुधारने के लिए हम कितना प्रयास कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारा विषय आज एक किसान जानेगा, कल 2 जानेंगे और एक ऐसा माहौल बदलेगा कि हम कृषि की इस स्थिति को बदल देंगे। तो आप
जब से जैविक खाद या जैविक खेती की तरफ लगे हैं, आपको क्या लगा भी कितने % जो किसान है वो रासायनिक कम करके जैविक की तरफ आ रहे हैं? बहुत अब कुछ साल तक तो ऐसा लगा कि शायद हम बहुत प्रयास करने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, पर अब तो कम से कम हमारे क्षेत्र में तो भारी मात्रा में किसान आए हैं। हमने उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्थाएं भी तय की है और बड़ी मात्रा में बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। जैविक उत्पाद हमारा स्वयं का भी हो रहा है। आपने अभी स्पीच में कहा था डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरी क्रांति लाने के लिए किसानों को बताया और लोग किसानों को हरी क्रांति लाए। उसके बाद रसायन की मात्रा बढ़ गई जिससे धरती के नीचे की स्थिति खराब हो रही है और आने वाले जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, मानवता पर बुरे असर हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो स्वामीनाथन जी ने किया वो सही नहीं था? स्वामीनाथन जी ने एक समय का एक अपना एक व्यवस्था होती है। स्वामीनाथन जी ने जब किया उस समय इनको ऐसा लग रहा था कि देश में अनाज की कमी है, अकाल जैसी स्थिति बन रही है और विदेशों से हमें अन्न आयात करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये किसी को आभास नहीं था कि अधिक पैदा करना ही मानव जीवन का एक लक्ष्य बन गया और ये नहीं सोचा कि हम जिस केमिकल का इस्तेमाल इस धरती में कर रहे हैं ये प्रकृति को नष्ट करती जा रही है। हमारी जो जैव विविधता है पूरे ब्रह्मांड की जो उसको नष्ट कर रही है और इसका प्रकृति के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ये थोड़ा सोचे ये निर्णय लिया गया। बाद में उन्होंने स्वयं को इस विषय को लेकर थोड़ा पछताना पड़ा। ये हमारे सामने विषय है। तो अभी जहां आप बैठे हो यहाँ पे आपके साथ संजीव जी बैठे हैं। इन्होंने एक खाद बनाई है जो पराली और गोबर से गोवर्धन धन मिशन भारत सरकार भी कह रही है, उसको आप किस तरह देखते हो किसानों को? आपने जो खाद बनाई, जो समस्त जो जीवधारी वनस्पति कोई जीव है उन सबसे जो भी चीज बनी है वो प्रकृति के अनुकूल है। आपने जो प्रयास किया है वो बहुत लाजवाब प्रयास है। मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ कि भूमि सुपोषण के लिए आपने इतना बड़ा थोड़ा कदम उठाया है और आगे चल के जो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो स्वयं अपने हाथों से मेहनत नहीं कर पाते वो इस चीज का प्रयोग करके और हमारी धरती को सुधारने में हमारी मदद करेंगे। आप अपने यदि किसानों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो जो खाद बनी है वो उनके लिए उपयोगी है, वो उनको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं हर कोई चीज भाई साहब ने जो अपना निर्माण किया है उसका उपयोग करना है। इसके बावजूद भी मेरा ये मानना है कि आपने इतने बड़े विशाल जो भारत में इनका उत्पादन हर किसान तक पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए किसान अपने स्तर पे भी ऐसे प्रयास करें। ऐसे अनेक वैज्ञानिक, अगले साल भी मैं अभी मुंबई में एक संस्था है प्रीवी करके और उसमें कम से कम 40 वैज्ञानिक इस विषय पे लगे हैं। भूमि परिवर्तन के ऊपर वो काम कर रहे हैं और वहाँ भी जो कुछ कमियां थी वहाँ मैं उनको बता के आया था। और आप स्वयं एक विशेषज्ञ हैं, मगर किसी भी चीज को जो हमारी जैव विविधता को नुकसान न पहुंचाए, हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए हमारी कृषि की उत्पादन बढ़े, अगर ऐसा प्रयास वो चाहे किसान करे, चाहे वैज्ञानिक करे, चाहे उद्योगपति करे, कोई भी करे, वो हमारे लिए मान्य हो। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जी की तरफ से। इरादा करता हूँ कि उनके आने से जागरूक किसान और जागरूक होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ऑर्गेनिक खेती इसीलिए लोग नहीं करते। किसान इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता कि वो अच्छी खाद तैयार करे, अच्छे कीटनाशक तैयार करे। तो कृषि को आज एक नया रूप देके इंडस्ट्रियल स्केल में ये काम किया जाए, जिससे कि किसान को बड़ी आसानी से जैविक खाद मिल सके और उसके साथ साथ आईसीआर के साथ मिलकर हम अच्छे माइक्रोब्स, अच्छे फंगीसाइड्स और पेस्ट रिपेलेंट्स हम तैयार करेंगे तो बड़ी आसानी से लोग जैविक खेती कर पाएंगे। तो आपने जो खाद तैयार करी है अभी पराली और गोवर्धन से, वो किसानों तक कैसे पहुंचेगी? किस तरीके से किसानों को उसका फायदा होगा? आज हम इसका प्रचार शुरू कर रहे हैं और आज के बाद ये और जोर पकड़ेगा कि भारत सरकार की जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि इसका प्रचार करना है। और हम ज़्यादातर लोगों को ये कह रहे हैं कि आप अपना बायोमास हमारे पास ले आइए, हम उसके बदले में आपको खाद देंगे और कुछ पैसा भी मिलेगा ताकि जो उसका लाने का खर्चा है
या उसको इकट्ठा करने का खर्चा है वो भी उसको मिल जाए तो इसका हम इससे धरती को बचा सकते हैं। थैंक यू सर। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।